Good morning, grade 9. Today we are going to start the new topic, coordinate geometry. So, today we will discuss on Cartesian system first in coordinate geometry. But first of all, I would like to introduce the coordinate geometry, what exactly the coordinate geometry is. So, let's see a system of geometry where the position of points on the plane is described using an ordered pair of numbers. मीन्स ज्योमेट्री का एक सिस्टम है जिसमें हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन बताते हैं. लाइक किसी भी पॉइंट को अगर हमने मार्क किया है किसी भी प्लेन के ऊपर, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हम कैसे पता करेंगे? तो बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो बेसिकली वी ड्रॉ और वी फाइंड आउट द पॉइंट in Cartesian plane or in graph paper. So by using the graph paper we can draw the Cartesian plane there, then we can mark the point. Then what about the described using an ordered pair of numbers? What does it mean, ordered pair of numbers? So we have an example here, coordinates. So let's see what about the coordinates exactly. So we have A, B, C, D, E, F. These all are the columns. So we have 6 columns of naming alphabets A, B, C, D, E, F. And we have the 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows like this. So we have one point X, which is lying on which place? It is lying on the plane. But exactly what place it is lying, we can find out with the help of rows and columns. Rows and columns in which way? Look at here. Like in columns we can see here this X, this point X is lying under the column D, like this, on lying on column D. You can see here D के just नीचे आ रहा है तो D वाले कॉलम में लाई कर रहा है, but D में तो कहीं पे भी लाई कर सकता है. Then we will take the help of rows also. So look at here, रो नंबर 3. तो रो नंबर 3 में भी x लाई कर रहा है, तो सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट और वी कैन लोकेट दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वन कॉलम एंड वन रो विच इज D3. सो वी कैन गिव द नेम और वी कैन गिव द पोजिशन नेम एज D3, दैट x इज लाइंग ऑन द पोजिशन D3. D3. Why D3? Because D is representing as column and 3 is representing as rows. तो इस कॉलम और इस रो के एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, मतलब कि अगर इस कॉलम को और इस रो को मिलाया जाए तो कहाँ मिल रहा है? पॉइंट X पर. तो X इज द, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D3. फाइन. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट X एक्चुअली. सो दिस इज नॉट happened in plane surface that we can find out the exact place by using the simple plane or by using a simple paper. So we need to use graph paper to draw the Cartesian plane there and find the positions. So what about the Cartesian plane exactly, and how can we draw it on the graph paper? Let's discuss about it. Yes, coordinate plane. So coordinate plane is what? In coordinate geometry, points are placed on the coordinate plane. Means coordinate geometry में जो भी points हम locate या लिखते हैं हम points को, वो coordinate plane पर ही लिखते हैं. Like जैसे कि अभी हमने D3 पढ़ा था ऊपर, तो ये simple plane पे था जहाँ पे हमने rows और column की मदद से हमने उसको locate किया. But यहाँ पर हम जो लोकेट करने वाले विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, नॉट एन अल्फ़ाबेट्स. तो हम नंबर्स के थ्रू कैसे लोकेट करेंगे? लेट्स सी. अ कोऑर्डिनेट प्लेन हैज़ 2 स्केल्स विच ऑल x एक्सिस एंड y एक्सिस. यू कैन सी हियर आई हैव वन कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन हियर. सो यू कैन सी दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज x एक्सिस. फाइन. So I have taken some numbers in positive and negative form, as we have already discussed in number system that integers can be represented on the number line.
So this time we are having two number lines, one is horizontal and one is vertical, and they both intersecting each other at point O. This is point O. We are supposing this is point O. It is known as origin. इसको क्या बोलते हैं? Origin कहते हैं. Fine. So this divides the line into two parts, like this is the positive x-axis, this one is the negative x-axis. So we are denoting as x and x dash. This is positive y-axis, this is negative y-axis. So we are denoting as y and y dash. तो सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो ऊपर आएंगे y के लिए, और x के लिए राइट साइड में आएंगे, और नेगेटिव नंबर जो है वो x के लिए लेफ्ट साइड में जाएंगे, और इधर डाउन साइड जाएंगे y के लिए. सो आई हैव टेकन द इंटरवल ऑफ 5 ईयर. मैंने यहाँ पे इंटरवल, जो इंटरवल मीन्स हमने जो गैप ले रहे हैं यहाँ पर, जो जीरो से लेकर डिस्टेंस की जो गैप ली हमने, वो सब इक्वल इंटरवल्स लिए यहाँ पे. ये जितना गैप होगा, जितना मेजरमेंट का उतना ही ये गैप होगा, ये भी उतना ही होगा. बट मैंने स्टार्टिंग करी है तो 5 से करी, 0 से 5, 5 से 10. तो यहाँ 5 का इंटरवल लिया है मैंने. यहाँ -5 हुआ है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव अगेन. सो हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड वन पॉइंट ए. तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर, वो हम कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x axis and y axis. You can see here this is the perpendicular line. तो this is representing 20. That means ये 20 से पास हो रही है, यहाँ तक गई. तो 20 वाली जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम सपोज कर सकते हैं जैसे कि हमने D वाला कॉलम लिया था. तो 20 वाला कॉलम और 15 वाली रो है ये. तो 15 वाली जो रो है वो 15 और 20 वाली कॉलम में जाके मिल रही है. तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिस इज़ पॉइंट ए. तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस 20,15. तो these are the coordinates of this point A. तो 20,15 are the coordinates. ये इसके coordinates है, ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पर, कि A इस पॉइंट्स पे लाई कर रहा है. So with the help of x-axis and y-axis we can represent, or we can locate the coordinates of any point, like for example A here. So you can also find out any point position, any point where it is located on the Cartesian plane. Just look at the distance from x-axis and y-axis and give their position, like 20,15. 20, first we will write 20 because it is representing x. तो हम x, y के फॉर्म में ही उसको लोकेट करेंगे, उसको लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स को. पहले x की वैल्यू आएगी, फिर y की. ओके, सो 20 इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सिसा एंड 15 इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, बिकॉज x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम एब्सिसा कहते हैं, और y के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, ओ ऑर्डिनेट. फाइन. Now I would like to introduce some parts of the Cartesian plane. Like there are 4 parts in a Cartesian plane. You can see here, this is part 1, quadrant 1. We can call it quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, then quadrant 4. So we have divided the Cartesian plane into 4 parts, like quadrant 1 राइट हैंड साइड जो बिटवीन x, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y के बीच में होता है. देन क्वाड्रेंट 2 जो होता है नेगेटिव x और पॉजिटिव y के बीच में. देन क्वाड्रेंट 3 विल लाई बिटवीन बोथ द नेगेटिव लाइंस, लाइक x भी नेगेटिव होता है यहाँ पर और y भी नेगेटिव होता है. तो उस वाले प्लेन में जो लाई करेंगे वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, वो क्वाड्रेंट 3 में लाई करते हैं. एंड x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव. जो इनके बीच में जो प्लेन है वहाँ पर जो है उसको क्वाड्रेंट 4 कहा गया है. और यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे x के पॉजिटिव होंगे और y के नेगेटिव होंगे, और उसी को क्वाड्रेंट 4 कहा गया है. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, वी कैन सी हियर द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस is 3 units. 3 units. Why we are taking the 3 units? Because this distance PM, this is perpendicular to x axis, so this is parallel to this distance, like O 1 2 3 तक जा रहा है. तो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस जो y एक्सिस पर लाई कर रहा है वही डिस्टेंस यहाँ 3 यूनिट का हो रहा है, क्योंकि यू कैन सी हियर 1 2 and 3. सो पॉइंट P is lying on perpendicular to x of 3 unit, मीन्स 3 यूनिट के डिस्टेंस पर लाई कर रहा है वो.
इफ़ वी टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से कंपेयर किया जाए तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 यूनिट, बिकॉज यू कैन सी एन पी इज़ पैरेलल टू ओ एम। ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो जितना डिस्टेंस ओ एम का होगा उतना ही एन पी का भी होगा। तो वाई से कंपेयर किया जाएगा तो वाई से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है पी का वो 4 यूनिट है, क्योंकि वो उसके पैरेलल 4 यूनिट आ रहा है। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो दूरी है पी पॉइंट की, वो कंपेयर की जाएगी इस ओ एन से। तो ओ एन इज़ 3, तो दैट मीन्स पी एम इज़ ऑल्सो 3 यूनिट्स। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन find out the perpendicular distance of any point. Let's take one more example of point Q. Q is lying perpendicular on x-axis, so QR will be, QR जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, OS के। तो OS कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है तो QR का भी डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। एंड QS की बात करें तो QS इज पैरेलल टू RO, तो RO कितना मीटर, कितना यूनिट्स है, 6 यूनिट है। दैट मीन्स QS इज ऑल्सो 6 units. So in this way we can find the perpendicular distance also. Okay, now let's locate the points for the given points. I mean, let's locate the coordinates for the given points like B. So B is locating on which place? Coordinates of B will be 4. 4 is lying on x-axis, so 4, 3. So 4, 3 are the coordinates of point B. What about M? M के लिए भी पहले x लेंगे फिर y लेंगे, तो x is -3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m विल बी -3, 4. तो इन ब्रैकेट्स वी विल राइट -3, 4. देन पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, -4, क्योंकि ये -5 और -4 पर लाई कर रहा है, तो -5, -4. एंड व्हाट अबाउट S? तो S के जो पॉइंट्स होंगे वो 3, -4. सो इन दिस वे वी कैन गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो. So thank you so much for today's topic. I hope you understood it very well. Thank you.